Hi, this is Rakesh Chakraborty and you are watching my YouTube channel English Studies Ramnagar. Well, today in this video we are going to study a poem from the book Rainbow Part 2 for intermediate 12th class from Bihar Board. Well, this is the first poem of the textbook and the title of the poem is Sweetest Love, I Do Not Go. Sweetest Love, I Do Not Go is one of the most celebrated love poems written by John Donne. John Donne is called the founder of metaphysical poetry. Metaphysical poetry, a term created by Samuel Johnson, an English essayist, poet, and philosopher. The present poem describes a parting scene when the poet, ready to leave for battle, and his beloved do not want him to go. The poet tries to console his beloved. Let's first see the first stanza of the poem. Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can sow a fitter love for me. But since that I must die at last, it is best to use myself in jest, thus by feigned death to die. In the very first stanza, the poet very beautifully presents his feelings about his beloved and the urgency of his departing. Well, in the present poem, John Donne presents his tender feelings and delicate passion towards his beloved. प्रस्तुत कविता में जॉन डन अपने कोमल भावनाओं को, अपनी प्रेमिका के प्रति अपने मन के कोमल भावनाओं को व्यक्त करते हैं. The poet says that one day he has to die as death is certain. कवि कहते हैं कि एक दिन सबको मरना है, उन्हें भी मरना है, क्योंकि मृत्यु जो है वो अटल है. He thinks that it would be better for him to accept this in a cheerful manner. वो सोचते हैं कि इस सत्य को आनंददायक स्थिति में ही स्वीकार कर लेना ही बेहतर है. As the sun sets in the evening and again comes out in the morning, the poet thinks that his love would bring him again to his beloved. जैसे सूरज हर दिन शाम में डूबता है, लेकिन फिर अगली सुबह फिर निकलता है. कभी भी सोचता है, अपनी प्रेमिका को बताता है कि उसका प्रेम, उसका प्यार उसे फिर से अपनी प्रेमिका के पास ले आएगा. His journey from death to life would be speedier than that of the sun. वो आश्वस्त करता है कि मृत्यु से जीवन की उसकी यह यात्रा सूरज की यात्रा से भी तीव्र होगी. क्यों तीव्र होगी? जैसा कि कवि ने अपनी कविता के दूसरी पंक्ति में कहा इसके विषय में, Yesternight the sun went hence, and it is here today.
He hath no desire, nor sense, nor half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. कवि यहाँ बताता है कि वह सूरज से भी तेज यात्रा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी प्रेमिका से मिलने का जुनून है, तीव्र इच्छा है, और अपनी इस इच्छा के दम पर अपने प्रेम के पंख लगाकर वह अपनी यात्रा को जल्द से जल्द पूरी करेगा। कभी आगे स्वीकार करता है, अगली पंक्ति में यह स्वीकार करता है, द पोएट एडमिट्स दैट मैन इज वेरी वीक। कभी स्वीकार करता है कि मनुष्य बहुत कमजोर है। ही इज हेल्पलेस अगेंस्ट टाइम। वह समय के आगे बिल्कुल लाचार है। He can neither add an extra minute to his joys. वह अपनी खुशियों में एक अतिरिक्त मिनट नहीं जोड़ सकता, nor cut short an hour from his sorrow, और नहीं अपने दुख से एक घंटा घटा सकता है। He asks his beloved not to shy or weep as they take away his soul. वह अपनी प्रेमिका को आहें भरने से, रोने से मना करता है, क्योंकि इससे उसकी जान निकलती है। He further asks her not to think anything ill for him. आगे वह उसे, अपनी प्रेमिका को वार्न करता है कि उसके बारे में वो कुछ भी बुरा मत सोचे। He is afraid that destiny may bring her fears come true. उसे डर है कि कहीं भाग्य ने उसके मन के भय को या उसके मन में उठने वाले बुरे विचारों को अगर सच कर दिया। He assures her that true lovers who live in one another's heart can never parted be. वो अपनी प्रेमिका को आश्वस्त करता है, भरोसा दिलाता है कि सच्चे प्रेमी जो एक दूसरे के मन में रहते हैं, एक दूसरे के दिल में बसते हैं, वो कभी जुदा हो ही नहीं सकते। They always live together. वो हमेशा एक साथ ही होते हैं। Like two persons sleeping in the same bed but turned aside. ठीक वैसे ही जैसे दो व्यक्ति बिछावन पे सोए हुए हैं, वो बस एक दूसरे से मुंह फेर के सोए हुए हैं। एक दूसरे को देख तो नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे का एहसास हमेशा होता है। Thus, the poet consoles his mourning beloved before going to the battlefield. इस प्रकार से कवि अपनी शोकाकुल प्रेमिका को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले आश्वस्त करता है। कविता की अन्य पंक्तियों को हम लोग देखें जरा सा। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join it to our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. In this stanza, the poet very beautifully asks his beloved to join hands against bad times. Man is helpless against time, but कवि यहाँ बताना चाहता है कि दोनों की सम्मिलित शक्ति मिलकर इस बुरे दौर का सामना कर सकती है, इनको खुद पर हावी होने से रोक सकती है। आगे के स्टेंजा में कवि कहता है, When thou sighest not wind, but sighest my soul away.
जब तुम आहें भरती हो, नहीं तो वो गर्म हवा नहीं, मेरी जान होती है, मेरी आत्मा होती है। When thou whipst unkindly kind, जब तुम इस तरह से निष्ठुर होकर अपने आंसू बहाती हो। My life's blood doth decay, वो मेरा जीवन रक्त होता है जो तुम्हारे आंसुओं के रूप में बह के बर्बाद होता है। It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। कवि यहाँ भावनात्मक रूप से अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयत्न करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और फिर खुद में मेरी जिंदगी को बर्बाद करती हो। तुम तो मेरा सबसे बेहतरीन हिस्सा हो। फिर आगे कवि अपनी प्रेमिका को वार्न करता है, अपने मन उससे, यहाँ ध्यान देंगे कवि के मन का भय भी दिखता है। Let not thy divining heart forethink me any ill। कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि अपने ईश्वरीय हृदय में, अपने इस दिव्य मन में मेरे लिए कोई बुरी भावना, कोई बुरे विचार मत लाओ, मत सोचो। Destiny may take thy part and may the fears fulfill। भाग्य तुम्हारा सुन सकता है, तुम्हारे मन की बातों को सुन सकता है, और कहीं उसने तुम्हारे इन भयों को, तुम्हारे इन डरों को, तुम्हारी इन चिंताओं को, दुश्चिंताओं को सच कर दिया तो। बट थिंक दैट वी आर बोथ टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कभी समझाता है प्रेमिका को कि ऐसा सोचो कि हम लोग एक ही जगह पर सोए हुए हैं, बस मुंह मोड़ के एक जगह पर सोए हुए हैं। They who one another keep alive never parted be। कभी कहता है जो एक दूसरे को खुद में जिंदा रखते हैं वे कभी अलग नहीं हो सकते। लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।